Hi guys, and welcome to this course on digital marketing with Online Bauji, India's leading e-learning platform. My name is Nimit Khanna and I am going to be your trainer for this particular course. In this course, the first topic or the first module that we're going to cover is evolution of digital marketing, or which is a part of Introduction to Digital Marketing. Under this topic, we're going to be covering three major sections. Number one, evolution of digital marketing channels. Number two, difference between traditional and digital marketing. And number three, pillars of digital marketing. So let's get started. Topic number one is evolution for marketing or evolution of digital marketing channels. But in order to understand this, we need to understand what is marketing and why do you basically need it. सिंपल भाषा में बात करें, अगर एक एग्जाम्पल के लिए हम बिजनेस लेते हैं और इस बिजनेस के पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो वो सेल करना चाहते हैं आगे. उनके पास एक प्रोडक्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक कस्टमर है जिसको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और इस बिजनेस को इस कस्टमर तक पहले अपना मैसेज पहुंचाना है. Why do they need the product and how can they solve the problem? The process that any business uses in order to transfer the message to the customer at the end of the day is called as marketing. And इस मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है. इन चैनल्स के थ्रू जहाँ से मार्केटिंग का मैसेज ट्रांसफ़र होता है, इस चीज़ को हम लोग मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं. Now, why are we talking about this? Why are we talking about marketing channels? It's very important for us to understand. Let's try to understand it with this question. As a business owner, what is the one most important thing that a business would want from their customers? एक बिजनेस ओनर के लिए एक ऐसी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो मांग सकते हैं अपने कस्टमर्स से? एक मिनट लीजिए, सोचिए आप भी. इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू. अगर आपका आंसर पैसे है तो शायद आप गलत हैं. इफ द क्वेश्चन दैट यू आंसर्ड वाज मनी, इट्स रॉन्ग. इट इज इंपॉर्टेंट, बट इन दिस सिचुएशन इट्स नॉट द राइट आंसर. The right answer to the question, which is the most important thing a business owner can ask from a consumer, is their attention. That's where everything begins. जब तक आपका अटेंशन ही बिजनेस ओनर के प्रोडक्ट या सर्विस पे नहीं जाएगा, तब तक ये बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं, आप जाएंगे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने, कंपेयर करेंगे उसे एंड देन परचेज करेंगे, ये सब कुछ नहीं होता. विल यू अग्री विद मी ऑन दिस? Great. So attention is what drives all the channels. And यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे. Now, the first time this started happening was newspapers. बहुत सारे लोगों ने देखा कि न्यूज़पेपर्स के अंदर लोगों की बहुत अटेंशन जा रही है, which is बहुत टाइम स्पेंड हो रहा है. आईज बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर के अंदर फिक्स्ड है. This is when newspapers were really new. People were consuming media, people were consuming information, people were consuming content. And till that time, the attention was focused on newspapers. And this is where some innovative people thought that why can't I place my business in front of these people? और यहाँ से जन्म होता है न्यूज़पेपर एड्स का, जो आज भी हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने न्यूज़पेपर्स के अंदर. So step one, figure out a place where a lot of your consumers' attention is present and then try to place your business over there. यहाँ से evolution शुरू होता है हमारे सारे marketing channels का. न्यूज़पेपर के बाद the next thing जो लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि अब attention next कहाँ पे जा रहा है, that was radio. Audio only. बहुत सारा फ्लफ साइड चला जाता है, attention सिर्फ यहाँ फोकस होकर रह जाती है. So now again business owners came up with this new thought process of coming up with audio based ads, जिनको आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं radio jingles, right? For example, पेटीएम करो, सबने सुना होगा ये छोटा सा जिंगल, और ये सबके दिमाग में बैठा भी हुआ है बिकॉज हमने रेडियो पे बहुत सुना है ये चीज़, राइट?
Moving forward to the third evolution of the marketing channel, which is TV. टीवी के साथ कंज्यूमर्स की ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस को दोनों को एंगेज करना शुरू किया बिकॉज देयर वाज अ वीडियो फॉर्मेट प्लेइंग आउट, राइट? एंड यहां पे बिजनेस ओनर्स ने फिर एक नया स्टेप लिया अपनी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए अपने यूजर्स की, विद वीडियो एड्स, विद टीवी बेस्ड एड्स। और यहां से जन्म होता है उन सारी आइकॉनिक एड्स का जो हम लोगों ने टीवी में देखी हैं। उनके कुछ कुछ के साथ तो हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, राइट? सम ऑफ द अमूल एड्स, सम ऑफ मदर डेयरी एड्स, अ लॉट ऑफ दोज आइकॉनिक ब्रांड्स जिनके हमने एड्स देखी हैं, उनके गाने भी कहीं ना कहीं याद है हम लोगों को, जैसे कि फेविक्विक। रिमेंबर दोज थिंग्स, राइट? यहां से एवोल्यूशन शुरू होता है इन मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एंटर्स इंटरनेट। इट्स 1960s, इंटरनेट का नया नया अभी यूज होना शुरू हुआ है एंड पीपल आर गेटिंग एक्टिव इनटू दैट एरिया, ओके? फास्ट फॉरवर्ड टू मॉडर्न वर्ल्ड टुडे, 2020, 21st century. In this time frame, everything where it's connected with the internet, हमारी सारी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। Forget everything, अपना बिहेवियर देखिए। How much time do you spend on your mobile phones? आई एम श्योर आपका आंसर कहीं ना कहीं 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के आसपास होगा। योर आईज, योर अटेंशन, every single thing that you have is focused on that small piece of device that you have on your hand. If you as a person are focused there, someone wants to capture that attention because you could be their consumer. And similarly it's true for you as a business owner. अगर आपका अपना कोई बिजनेस है, अगर आपका अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस है और आप उसे मार्केट करना चाहते हैं, one of the easiest ways to reaching out to your customers is reaching out to a place where they have their attentions already focused and trained, which in modern world today is their mobile phone, a device connected to the internet. And this is where the marketing channel of modern day comes in, called as digital marketing. And that's how the evolution of all of these marketing channels has happened. Moving on from this next topic to coming to the next topic, which is difference between digital and traditional marketing. Okay? In this topic, we'll try to understand how the traditional marketing is different from digital. Where does traditional beat digital and where does digital beat traditional? So let's look at it as reach. ट्रेडिशनल मार्केटिंग की रीच डिजिटल से हमेशा बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीवो स्मार्टफोन को अपना स्मार्टफोन पूरी कंट्री के अंदर पॉपुलराइज करना है तो वो आईपीएल में जाके ब्रांडिंग खरीदेगा, राइट? डिजिटल की रीच उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट यहाँ पे फ़ायदा आता है डिजिटल का, विच इज़ द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन कॉल्ड एज टारगेटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की टारगेटिंग बहुत ब्रॉड है, हर इंसान को ऐड दिखती है, बट इन डिजिटल आप फोकस कर सकते हैं एग्जैक्टली किस इंसान को आपकी ऐड दिखनी चाहिए। एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन, बहुत वैल्यूज होती हैं जिन पे आप फिल्टर कर सकते हैं। द थर्ड थिंग, पर्सनलाइजेशन। ट्रेडिशनल में ये पॉसिबल नहीं है। रेडियो एड्स आपको पर्सनलाइज नहीं हो सकती हैं, बाहर जो होर्डिंग्स लगी हैं वो आपके लिए पर्सनलाइज नहीं हो सकती हैं। हाउएवर पर्सनलाइजेशन कैन हैपन ऑन डिजिटल। अगर आप अमेजोन की वेबसाइट पे गए और आपने एक प्रोडक्ट देखा, आपको अच्छा लगा बट आपने परचेज नहीं किया, अगले 1 महीने तक आपको एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट दिखता रहेगा। अमेजोन सारे प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा आपको। हैज हैपेंड विद यू? यस। दिस टेक्निकली इज कॉल्ड एज रीमार्केटिंग। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हाउएवर दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर टारगेटिंग द राइट काइंड ऑफ कस्टमर एंड personalizing the content to them. Moving on to the next differentiation, which is implementation timing. ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर किसी भी कैंपेन को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बिकॉज आप चेंजेस नहीं कर सकते उतनी जल्दी। वंस इट्स लाइव, वो सबके सामने लाइव है।
हाउएवर डिजिटल के अंदर आप बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपके ऐड के क्रिएटिव्स हैं, जो भी आपने वीडियोस बनाई हैं, जो भी आपने एड्स बनाई हैं, मार्केटिंग मटेरियल बनाया है, आप उसको बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एंड इफ इट इज़ नॉट वर्किंग दैट वेल, आप उसे क्विकली चेंज भी कर सकते हैं। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट दैट डिजिटल ब्रिंग्स टू यू। Budgets for all small and medium business owners, for all SMBs out there, digital is this is where digital comes to you as a savior. In order to start your marketing and advertising on offline platforms or traditional platforms, आपका starting capital बहुत high लगता है, but with digital you can start it as low as 80 rupees a day. This is what I'm telling you if you want to advertise on Facebook. So it's that cheap. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। नाउ दोनों चैनल्स आपको ROI लाके देते हैं। हाउएवर क्योंकि ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग इज वेरी जेनेरिक, वहां पे ROI थोड़ा सा कम होता है, बट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल आपका ROI बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अपनी एडवर्टाइजिंग बहुत स्पेसिफिक लोगों को करके दिखा सकते हैं। जो भी आपका एड कंटेंट है वो स्टैटिक या एंगेजिंग है। दिस इज व्हाट डिफाइंस ऑन बोथ दीज टू मीडियाज। नाउ जो भी आपका ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग है वहां पे स्टैटिक कंटेंट चलेगा, इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बट डिजिटल के ऊपर कस्टमर्स आपके ब्रांड के साथ डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं, एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ टू-वे कम्युनिकेशन चैनल इन अ वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग। एंड फाइनली द लास्ट थिंग विच इज measuring campaign results, right? ऑफलाइन के साथ आपने कितने पैसे स्पेंड करे, उसका रिजल्ट एग्जैक्टली कितना आया, इसको फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर डिजिटल पे आप लेजर फोकस करके फिगर आउट कर सकते हैं कि आपने किस जगह से कस्टमर्स एक्वायर करे, कहाँ से आपकी लीड्स आई, आपकी सेल एग्जैक्टली किस जगह से हुई। And this is what encapsulates a basic difference between digital and traditional marketing. In our next video, we're going to see what are the key pillars that drive digital marketing. Thank you so much for staying with me on this particular video. See you in the next one.